Hello everyone. In this lecture, we will know how to solve homogeneous system of linear equation. In the last lecture, we have seen how to solve non-homogeneous system of linear equation using the technique of rank. Now we will solve homogeneous system, under which condition the homogeneous system has only trivial solution and when it has non-trivial solution. So we will see these things. So let me define what is a homogeneous system. System of linear equation. शॉर्ट में लिखेंगे हम homogeneous system of linear H सोल. दिस कैसा फॉर्म होगा इसका homogeneous system का? ऐसा होगा A11 x1 A12 x2 A1n xn equal to 0 A21 x1 A22 x2 A2n xn equal to 0. And suppose we have m equations in n unknowns, it will be like this. Xn equation. Suppose this is the system 1. So there are m equations and n unknowns. And the right hand side coefficients are 0. So this is a homogeneous system. Now this system has two kind of solutions. One is trivial solution and another one is non-trivial solution. So let's see what do we mean by trivial solution. So observe that if you substitute the value 0 to each variable, these equations are satisfied. So 0, 0, 0 is a solution for the system. Clearly, for x1 equal to x2 equal to up to xn equal to 0. So the value 0 satisfying these equations. So this for the given system 1 is satisfied. System 1 is satisfied. Right. Hence, homogeneous system is always consistent. Homogeneous system of linear equation is always consistent. मतलब आपको कंसिस्टेंसी चेक करने की जरूरत नहीं है. होमोजेनियस सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होता है. नॉन होमोजेनियस सिस्टम कंसिस्टेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. That is a part of investigation. But for the homogeneous system, you need not to check their consistency. Okay. Now we need to only check whether it has only unique solution or infinitely many solution. तो सबसे पहले हम बात करते हैं trivial and non-trivial solution. What is trivial solution? Trivial solution. A system of linear equation जीरो सोल्यूशन. जीरो सोल्यूशन का मतलब होता है all the
zero solution to the system of linear equation is called trivial solution. दूसरी definition, non non-trivial solution. A solution other than zero solution. Zero solution, a trivial solution. Solution other than zero solution is called non-trivial solution. Non-trivial solution. ठीक है, this is all about trivial and non-trivial solution. एक एग्जांपल समझते हैं. So we have taken example. If we take x plus y plus z equal to 0, y minus z equal to 0, x plus y equal to 0. So we have three equations and three unknowns. इसे जब ऑब्जर्व करिए कि इस सिस्टम में x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 अगर आप इन तीनों इक्वेशन में रखेंगे तो तीनों की तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी आपकी. ठीक है, so this is a solution. is a solution. और इसी को कहते हैं called trivial solution. Now we can talk about non-trivial solution. What may be the non-trivial solution? So this is equation number 1. This is 2. This is 3. See, x plus y equal to 0. So you can substitute x plus y equal to 0 here. Then z will be 0. So substitute here x plus y equal to 0. So 0 plus z equal to 0 implies z equal to 0. Now substitute here z equal to 0. What you will get? Y equal to 0. Now substitute here y equal to 0. You will get x equal to 0. So from here you can see that 0 is the only solution. This system has only 0 solution. So this system clearly, this homogeneous system of linear equation has only trivial solution. And this is the unique solution. So if you choose some other values of x, y, z, then this system is not going to be satisfied by these values. Okay, so that's why this has only a trivial solution, unique solution. Now we will see condition in the rank of the matrix to determine the nature of solution. So you can convert our system of linear equation into matrix form. This is the matrix form for homogeneous system of linear equation. Matrix form of homogeneous system of linear equation. Clearly, right hand side का जो matrix है that should be equal to 0. So this is a homogeneous form. आपको अगर आपने augmented matrix यहाँ बनाई है तो क्या बनेगी आपकी augmented matrix? Augmented matrix बनेगी A और right side में 0. तो लास्ट वाला जो कॉलम आपका 0 कॉलम आएगा 0 0, इसका कोई मतलब नहीं है. वी कैन इग्नोर दिस कॉलम क्योंकि सब कुछ 0 है तो ये रैंक में कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी. यहाँ पर होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ये होता है ऑगमेंटेड कॉलम, और जब दोनों मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ये कॉलम मिल जाते हैं तो इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. बट हमें क्योंकि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लास्ट वाला कॉलम 0 0 है, इसको इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, बचेगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स. तो यहाँ पर हमें सिर्फ कोफिशिएंट मैट्रिक्स को ही सॉल्व करना है, उसमें कन्वर्ट करना है. That is equivalent to matrix A, that is the coefficient matrix.
तो यहाँ जब हम होमोजेनियस सिस्टम सॉल्व कर रहे होंगे तो अपनी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जगह हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स को इक्लान फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो मैं पहले बताता हूँ। अगर ए एक्स इक्वल टू 0 है तो कैसे रैंक डिटरमाइन करेगा कि इसके पास मैट्रिक्स ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, ऑलवेज कंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये राइट साइड जीरो का ए, जीरो का रैंक निकालो चाहे ए का रैंक निकालोगे दोनों सेम आएगा। तो इस केस में हमेशा होगा होमोजेनियस केस है, इसमें रैंक ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इनटू बी की जगह जीरो रखो यहाँ पर। सो दैट्स व्हाई सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। नाउ फर्स्ट है ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओनली कब ऐसा होगा? ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा? जब रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन, एन इक्वल टू द नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स। अगर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स आ जाए तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये यूनिक सॉल्यूशन कह सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब आएगा? और हमने देखा था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। तो एक सोल्यूशन जीरो जीरो हमेशा होता है होमोजेनियस सिस्टम का, और जीरो जीरो के अलावा जो सोल्यूशन होंगे वो हमेशा नॉन ट्रिवियल होंगे। तो अगर किसी होमोजेनियस सिस्टम के पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर भी रहा है तो इट इज गारंटीड दैट देयर मस्ट बी इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। सो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस के लिए if rank of A will be less than n number of unknowns, और इस केस में कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन मिलेंगे? In this case we will get n minus rank of A many many linearly independent solutions. Solutions, okay, it means ये जो linearly independent solution आएंगे इनको हम किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करा करके डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ऑल अदर सॉल्यूशंस विल बी डिपेंडिंग ऑन दिस n माइनस रैंक ऑफ a मैनी लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। और लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इसके आगे वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा कि लिनियरली इंडिपेंडेंट होता क्या है, व्हाट इज लिनियरली डिपेंडेंट एंड व्हाट इज लिनियरली इंडिपेंडेंट। लेट मी सॉल्व सम कपल ऑफ एग्जांपल्स इन दिस डायरेक्शन। सॉल्व द फॉलोइंग homogeneous system of linear equation। सॉल्व द फॉलोइंग होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, दिस इज द होमोजेनियस सिस्टम। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या करेंगे? पहले हम इसकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे। हमको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने की जरूरत नहीं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लास्ट कॉलम एज अ जीरो कॉलम। तो पहला जो कॉलम होगा उसमें x के कोएफिशिएंट लिखने हैं। तो पहले मैट्रिक्स में x का कोएफिशिएंट है 1, दूसरी में नहीं है तो 0, तीसरी में 3, नाउ कम टू सेकंड वन 1 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर z में कितना आएगा -3 1 एंड -1। अब आपको इसे कन्वर्ट करना है इक्लान फॉर्म में। तो कन्वर्ट करते हैं। R3 में हमको 0 बनाना है, R3 माइनस 3 टाइम्स R1, 1 minus 3, 0 1 1, 3 minus 3 0, 2 minus 3 minus 1 plus 9, that is plus 8. So now we will make, so this is the leading element. Now we take this as a leading element.
now convert here R1 minus R2 R3 plus R2। ये ऑपरेशन आपको क्विकली आनी चाहिए विदाउट एनी डिले। 0 1 1 0 0 9 our matrix converted into echelon form। Okay, this is a leading element, this is a leading element, this is a leading element। Observe that rank of A equal to कितना आ गया 3 and that is equal to number of unknowns, number of unknowns है। So this implies system has only trivial solution। अब आपको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। trivial solution का मतलब है x equal to y equal to z equal to 0। This is the only solution of the given system। ठीक है, गॉट द आइडिया। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, 3w equal to 0, 6x plus 3y plus 4z plus 7w equal to 0, 2x plus y plus w equal to 0। आपके पास इस बार 3 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है। तो इसको सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। x के कोफिशिएंट कलेक्ट करेंगे 4 6 2, y कोफिशिएंट 2 3 1, z के कोफिशिएंट 1 4 0 और w के कोफिशिएंट 3 7 1। दिस इज आवर कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब हम इसको इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, अपडेट करते हैं, क्विकली अपडेट करते हैं। देखो तो मैंने मुझे यहाँ पर 0 बनाना है। कैसे 0 बनाए, तो इसको पहले 4 से डिवाइड करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6/4 इंटू क्या करते हैं R1, और R3 को 0 बनाना है तो R3 माइनस 1/2 टाइम्स R1 कर दें। तो यहाँ से लेकर डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ वैल्यूज, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। पहले रो में कोई चेंज नहीं किया हमने, 4 2 1 3। दूसरे रो में चेंज किया हमने। जब आप ये ऑपरेशन यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 0 0 5/2 एंड 5/2, और लास्ट वाले रो में मिलेगा 0 0 -1/2 एंड -1/2। एक बार और ऑपरेशन यूज करेंगे तो हमारा मैट्रिक्स इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लीडिंग एलिमेंट और ये लीडिंग एलिमेंट, बट इसके नीचे 0 होना चाहिए था यहाँ पर, तो इसको 0 बनाएंगे पहले। तो ऑपरेशन यूज करें हमने R3 plus 1/5 times R2। दिस इज द ऑपरेशन दैट वी विल यूज। यहाँ से पहले रो में कोई चेंज नहीं है, सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं है, एंड थर्ड रो में चेंज है तो 0 0 0, और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। ऑब्जर्व दैट हाउ मेनी लीडिंग एलिमेंट इट हैज, ओनली 2 लीडिंग एलिमेंट्स। तो रैंक ऑफ ए कितना आ गया 2, दैट इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। कितने नंबर ऑफ अननोन्स, अननोन्स है 4। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज सिस्टम हैज non-trivial solutions। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, कितने नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होंगे, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। अब इसमें कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, इन दिस केस we will get total number of variables minus rank of a, we will get n minus rank of a, that is equal to 4 minus 2, that is equal to 2,
टू linearly independent solutions। linearly independent का कंसेप्ट हम लोग अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे, तो घबराइए मत, बहुत आसान चीज है। तो दिस इज हाउ रैंक helps us to determine the nature of solutions, then effectively helping us to solve the system of linear equation। okay? अब जैसे मुझे इसे सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। सॉल्यूशंस क्या होंगे इसके, सॉल्यूशंस आर, कैसे निकालेंगे, ये जो पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन से वेरिएबल्स की वैल्यू रखो तो कितना जाएगा, पहली इक्वेशन से आएगा 4x, मतलब वापस आपको मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर दो इक्वेशन के फॉर्म में, प्लस 3w इक्वल टू 0, और सेकेंड वाली रो से मिल जाएगा 5/2x, सॉरी नॉट एक्स, वाई 5/2z प्लस 5/2 w इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, z प्लस w इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ गया, z इक्वल टू कितना आ गया, -w आ गया। उसी तरह से यहाँ से देखो, फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट इम्प्लाइज 4x इक्वल टू -2y और z की जगह क्या लिखेंगे, -2y प्लस w -3w, यहाँ से कितना जाएगा, -2y -2w, और x इक्वल टू आ जाए तो x का वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, -y/2x -y/2 -w/2, ये वो x की वैल्यू आ गई। और x किस किस पर डिपेंड कर रहा है, y और w पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशंस को, सॉल्यूशन आपका कैसा होगा, x इक्वल टू x y z w, यहाँ से कितना जाएगा, -y/2 -w/2, यहाँ पर y ही रहेगा, और यहाँ पर z की जगह -w और यहाँ पर w। अब आप x और y वालों को अलग अलग कर लेंगे, तो y वालों को पहले सेपरेट करते हैं, तो यहाँ से माइनस का y/2, सेकंड कंपोनेंट में y है, थर्ड में y है ही नहीं, तो 0 0, प्लस अब w वालों को एक साथ करते हैं, देखो पहली इक्वेशन में है -w/2, सेकंड कंपोनेंट में है ही नहीं w, तीसरे में -w, चौथे में w। अब यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं, तो y जैसे अपने कॉमन लिए तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस का 1/2, यहाँ पर 1 और यहाँ 0 0। सेकेंड इक्वेशन को देखिए, अगर आपने w कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, -1/2 0 -1 एंड 1। देखो ध्यान से, आपका ये जो जनरल सोल्यूशन x है, किन दो सॉल्यूशंस पर डिपेंड कर रहा है, एक इस पर और एक इस पर डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये दोनों के दोनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये वेक्टर्स एक्चुअली में b1 और b2, इनको हम वेक्टर्स बोलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। सो दिस इज अ b1 एंड दिस इज द b2, b1 एंड b2 आर linearly independent solutions and solutions। तो आपके solutions क्या आ जाएंगे, solution आपके आ जाएंगे, तो आंसर आपको ये लिखना है, x इक्वल टू y टाइम्स -1/2 1 0 0 प्लस w टाइम्स -1/2 0 -1 1। ठीक है, ध्यान से देखो, कैपिटल जो x है इस और इस सॉल्यूशन की लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, वेयर y and w आर रियल नंबर्स, ये क्या होंगे, रियल नंबर्स, इनको आप रियल नंबर से अज्यूम कर लो, ठीक है। कुछ लोग इसको यहाँ पर एस कर दें, कुछ यहाँ पर टी कर देंगे, वाई की जगह एस भी कर सकते हैं, डब्ल्यू की जगह टी कर सकते हैं, फिर यहाँ पर एस और टी पैरामीटर्स हैं, तो देखो कितने पैरामीटर फैमिली ऑफ सोल्यूशन आ गया। सो दिस इज अ 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ सोल्यूशन।
तो आपका ये जो सोल्यूशन है ये टू पैरामीटर फैमिली ऑफ सोल्यूशन है, क्योंकि एक पैरामीटर ये है, एक पैरामीटर ये है। दो पैरामीटर की हेल्प से हम पूरे सोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये कैसा है, क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, टू पैरामीट्रिक सोल्यूशन, टू पैरामीट्रिक सोल्यूशन से। ठीक है, अब आप y और w की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखते जाओ, आपको कैपिटल X की वैल्यू आती जाएंगी। देखो अब ट्रिवियल सोल्यूशन कैसे आएगा, अगर y की वैल्यू जीरो रख दो और w की वैल्यू जीरो रख दो, तो जीरो को इससे मल्टीप्लाई कराओगे जीरो, इसको भी जीरो से मल्टीप्लाई कराओगे तो x की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो x y z w ये सब के सब जीरो हो जाएंगे, तो ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए दोनों में से किसी एक को नॉन जीरो आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज हाउ आवर थ्योरी विल गो। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है एक, इन्वेस्टिगेट for what values of lambda and mu by simultaneous equations the system homogeneous system of linear equation homogeneous one to equation x plus y plus z equal to 0, x plus 2y plus 3z equal to 0, x plus 2y plus lambda z equal to 0. Let me remove mu, only lambda the system of equation is there first. Hence, first no solution. Unique solution. नो सोल्यूशन का तो कभी केस होगा ही नहीं। ठीक है, ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, देखो सबसे पहले आपको अपने मैट्रिक्स को कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखनी है। इक्वल टू क्या आएगा, एक्स के कोएफिशिएंट्स पहली इक्वेशन से, दूसरी इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन से। नाउ सेकंड कॉलम मींस y के कोएफिशिएंट 1 2 2। देखो y कोएफिशिएंट 1 y कोएफिशिएंट 2 y कोएफिशिएंट 2, तो ऐसे इनको रखते चले जाओ यहाँ पर। नाउ कम टू z, यहाँ पर z का कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पर 1 रख दिया है। ठीक है, यहाँ z का कोएफिशिएंट कितना है 3 3 रख दिया। यहाँ पर z का कोएफिशिएंट कितना है लैम्डा, तो क्या लिखना है यहाँ पर लैम्डा। खत्म। इसको कन्वर्ट करना है इक्लान फॉर्म में, वेरी इजी टू कन्वर्ट इनटू द इक्लान फॉर्म। गए R2 में R1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ से 1 1 1 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1 3 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 माइनस 1 कितना जाएगा 1, यहाँ से लैम्डा माइनस 1। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट ऑपरेशन। अभी भी ये इक्लान फॉर्म में नहीं है, इसके नीचे जीरो करना हमको, कर देते हैं। R3 1 1 1 0 1 2 0, थर्ड में सेकेंड रो सब्ट्रैक्ट किया 0, लैम्डा माइनस 1 माइनस 2, यहाँ से कितना जाएगा लैम्डा माइनस 3।
अब देखिए, ये लीडिंग एलिमेंट है कि ये लीडिंग एलिमेंट, और ये लीडिंग एलिमेंट बन सकता है लैम्डा की वैल्यू के लिए। अगर आपने यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 3 पुट कर दी तो ये 0 हो जाएगा, और 0 होते ही फिर ये लीडिंग एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो नाउ हमें चेक करना है हर एक चीज ध्यान से। तो ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए फॉर्मूली फॉर्मूली ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होना चाहिए आपका? रैंक ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एन होना चाहिए, नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं आपके क्वेश्चन में? नंबर ऑफ अननोन्स है 3, तो रैंक ऑफ ए आपको 3 चाहिए। रैंक ऑफ ए 3 चाहने के लिए देखो, एक लीडिंग एलिमेंट, ये एक लीडिंग एलिमेंट है, और इसको भी लीडिंग एलिमेंट बनाना है, तो यहाँ पर नॉन जीरो चाहिए। नॉन जीरो कब आएगा? जब लैम्डा की वैल्यू 3 की इक्वल नहीं होगी। ठीक है, सो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 if lambda minus 3 is not equal to 0 implies lambda is not equal to 3। पहली चीज तो ये आ गई, ये आपका आंसर आ गया, lambda not equal to 3। So there are infinitely many values of lambda for which the given system of homogeneous linear equation has only trivial solution, and those are choose any value other than 3। Now come to the second part। second part में क्या पूछा उसने? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। for non-trivial solution, for non-trivial solution क्या होना चाहिए? व्हाट इज द कंडीशन? रैंक ऑफ ए शुड बी लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। अब नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं आपके? 3। तो रैंक ऑफ ए 3 कब नहीं होगा? जब ये वैल्यू 0 हो जाए। इसको 0 करने के लिए एंड सो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 if lambda minus 3 equal to 0 implies lambda equal to 3। So for lambda equal to 3, rank of A is less than 3। दिस इज द आंसर। इस लैम्डा की वैल्यू के लिए आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द होमोजीनियस केस। तो हमने सारी चीजें सीख ली, हमने होमोजीनियस को सॉल्व करना सीख लिया, नॉन होमोजीनियस को सॉल्व करना सीख लिया, नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे ये सीख लिया हमने। सो एवरीथिंग इज लर्न। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करें एक नया टॉपिक, दैट इज वेक्टर स्पेस। और उस वेक्टर स्पेस में हम लोग सीखेंगे हाउ व्हाट इज लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, व्हाट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, बेसिस क्या होती है। उसके बाद हम बेसिस के बाद हम डायमेंशन सीखेंगे, व्हाट इज द डायमेंशन। वी विल सी सम कपल ऑफ एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर स्पेसेस दैट आर रिलेवेंट इन आवर कोर्स। और उसके बाद में हम सीखेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस, दैट इज वेरी यूजफुल। इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन के साथ साथ हम सीखेंगे व्हाट इज ऑर्थोगोनल वेक्टर्स या परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट हम लोग डेवलप करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।